Good morning children, I am Poonam Bagga and we are playing with numbers in chapter 3. In our previous class we had discussed the test of divisibility of numbers and today we will be applying those tests in solving question 1 of exercise 3.3. So it will be very interesting for you. Let us have the question. Using divisibility tests, determine which of the following numbers are divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 and we have to give the answer in yes or no. So here we have been given a few numbers and we have to check the divisibility of these numbers by 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. ये नंबर्स कुछ दिए हुए हैं हमें और इनकी डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे एक एक करके. पहले 2 से सभी नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, फिर 3 से चेक करेंगे, 4 से, 5 से और इस तरह से इन सभी नंबर्स से हम इन दिए हुए नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे. और यहाँ वो डिविजिबिलिटी टेस्ट जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे वो काम आने वाले हैं और बहुत मज़ा आने वाला है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2. We take on divisibility by 2. Now what was the divisibility test of 2? Just recall, it says that if a number has 0, 2, 4, 6 or 8 at one's place, then that number will be divisible by 2. Or in other words, if a number is an even number, then it will be divisible by 2. अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट, वंस प्लेस डिजिट, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0, 2, 4, 6 या 8 हो. In other words, it is an even number. Then that number will be divisible by 2. वो 2 से divisible होगा. तो यहाँ हम सभी नंबर्स के वंस प्लेस डिजिट देख लेते हैं, लास्ट डिजिट, और बता सकते हैं कि कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल होगा और कौन सा नहीं. यहाँ एक बार फिर से हम याद कर लें कि हमें डिवीजन का रिजल्ट नहीं चाहिए. क्वेश्चन ऑफ द डिवीजन आर not required in these cases. What we need is just to know whether this number will be divisible by 2 or not. What does this mean? That if we divide this number by 2 or any of these numbers by 2, then the remainder is 0 or not. That is in what we are interested. So 128. Here the ones place digit is 8. Yes, it is an even number and so yes, it will be divisible by 2. Here the last digit is 0. Again an even number and so it will also be divisible by 2. So yes for it. Then here also we have this last digit 6. Again an even number and so yes for it. ये भी 2 से divisible होगा. इसकी last digit even number है, 6 है. यहाँ last digit आपकी है 5 और 5 तो odd number है, ये even number नहीं है. इनमें से number नहीं है, ये 0, 2, 4, 6, 8 में से नहीं है ये digit. तो ये एक odd number है और ये 2 से divisible नहीं होगी. इसका अगला मतलब ये है कि अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट डिवीजन नहीं होगा. सो अ नो फॉर इट. देन अगेन लुक एट द लास्ट डिजिट, इट इज 6, इवन नंबर है और बिल्कुल ये 2 से डिविजिबल होगा. सो येस फॉर इट. यहाँ पे लास्ट डिजिट आपकी 0 है और फिर से ये इवन नंबर है और ये भी 2 से डिविजिबल होगा. सो येस फॉर इट. यहाँ फिर से लास्ट डिजिट 4 है and this is again an even number and so it will also be divisible by 2. So we can write yes for it. Here also we have this last digit 6 which is again an even digit and so this number is an even number and it will be divisible by 2. So we write here yes. Here also the last digit is 0, again an even number and it will be divisible by 2. So we can write it yes. Then here we have the last digit 9.
और ये तो ऑड नंबर हो गया और ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, एग्जैक्ट डिवीजन नहीं होगा। डिवाइड करेंगे अगर 2 से तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो। जबकि जिनके लिए हमने येस लिखा है, अगर इनको हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 मिलेगा। सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय एग्जैक्ट डिवीजन। नाउ वी मूव ऑन टू द divisibility test of 3. Just recall what was that test till I erase this. Yes, now we are interested in the divisibility by 3. By this time I hope you must have recalled what was its test. Yes, here we find out the sum of the digits first, and then if the sum is divisible by 3 then that number will be divisible by 3. हम दिए हुए नंबर के डिजिट्स का सम निकालते हैं पहले, अगर वो सम 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। We take the numbers one by one and we will be finding the sum of digits in case of divisibility by 3. The first number is 128. Let us find its sum. 1 plus 2 plus 8. It is 11. Now is this 11 divisible by 3? क्या 11 3 से divisible है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 11 3 की टेबल में आता ही नहीं है। तो इसलिए क्योंकि 11 3 से divisible नहीं है तो ये नंबर 128 भी 3 से divisible नहीं होगा। So we write here no in case of 3. Then the next number is 990. इसके डिजिट्स का सम फाइंड आउट करते हैं। It will be 9 plus 9 plus 0. It is 18. And yes, 18 comes in the table of 3 and it is divisible by 3. 18 3 से divisible है, 3 6 18, 3 की टेबल में आता है 18। इसलिए क्योंकि 18 3 से divisible है इसलिए 990 भी 3 से divisible है और हम इसके लिए यहाँ पे yes लिख सकते हैं। आप देखेंगे ये सभी बड़े नंबर्स हैं और ये किसी की टेबल में तो मिलेंगे नहीं हमें, तो हम इनकी डिविजिबिलिटी बिना दिए हुए नंबर से डिवाइड किए बस छोटे से कैलकुलेशन से बता पा रहे हैं कि डिविजिबल होगा या नहीं होगा। सो अगेन वी हैव द थर्ड नंबर 1586. Again we will add the digits 1 plus 5 plus 8 plus 6. Add on, you will get 8 and 6 14, 15 and 5 20. Now is this 20 divisible by 3? No, 20 does not come in the table of 3, and so this number 1586 will also not be divisible by 3. So we can write here a no. I hope all this is very much clear to you. Then we have the next number 275. Let us add the digits 2 plus 7 plus 5. It is 7 and 5 12 and 2 14. Is this 14 divisible by 3? Clearly not. 14 does not come in the table of 3. 3 की टेबल में 14 नहीं आता है और इसलिए 275 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा और हम यहाँ पे नो लिख सकते हैं। अगला नंबर है 6686। इसके भी डिजिट्स को एक बार ऐड करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। इट विल बी 6 plus 6 plus 8 plus 6. It is 12 plus 8 plus 6. 12 and 8 it's 20, 26. 26 3 की टेबल में आता है नहीं, हमें पता है 3 9s 27 तो आता है लेकिन 26 नहीं आता है और क्योंकि 26 3 से डिविजिबल नहीं है इसलिए 6686 भी 3 से डिविजिबल नहीं है और हम यहाँ पे लिखेंगे नो in the column of 3. Next number, let us erase whatever we have written so that we can write it over here. I hope you all have understood whatever has been written here. Next we have the number 6392.
6,310. It is 6,39,210. Now it's a big number and let us check its divisibility. We will find the sum of the digits. 6 plus 3 plus 9 plus 2 plus 1 plus 0. It is 6, 3, 9 and 9, 18, 19, 20, 21. 21 is the sum and 21 comes in the table of 3. We know 3 sevens are 21. So 21 is divisible by 3 and so this big number will also be divisible by 3. So we can write a yes here. Then the next number is 4,29,714. Let us find the sum of the digits. 4 plus 2 plus 9 plus 7 plus 1 plus 4. What is it? 4 and 2 6 and 9 15, 22, 23 and 4 it's 27. क्या 27 3 से divisible है? बिल्कुल है, क्योंकि ये 3 की टेबल में आता है. 3 9 are 27 और क्योंकि 27 3 से डिविजिबल है इसलिए ये बड़ा नंबर 4,29,714 भी 3 से डिविजिबल है और हम यहाँ पे लिखेंगे yes. Then the next number is 2,856. Again we will find the sum of the digits. 2 plus 8 plus 5 plus 6. Add on. It's 10, 15 and 6, 21. Again 21. 21 is divisible by 3 and so this number is again divisible by 3. So we can write a yes here. Then we have the remaining two numbers. Let us erase this so that we can have the space for these two numbers. It's 3060, 3060. Again find the sum of the digits. 3 plus 0 plus 6 plus 0. What is it? 3 and 6? 9. 9 is clearly divisible by 3 and so this number 3060 is also divisible by 3. So we write yes here. Then the next number is 4,06,839. Again we will find the sum of the digits. 4 plus 0 plus 6 plus 8 plus 3 plus 9. इनको ऐड करते हैं. It will be 10 and then 8 and 3 11, 21 and 9 it will be 30. क्या 30 3 से divisible है? 3 की टेबल में आता है 30. 3 10 से 30 तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवीजन होगा. तो 30 इज डिविजिबल बाय 3 और इसलिए ये बड़ा नंबर 4,06,839 ये भी 3 से डिविजिबल है और हम यहाँ पे लिखेंगे यस. तो आपको समझ में आ गए दोनों डिविजिबिलिटी बाय 2 एंड डिविजिबिलिटी बाय 3. नाउ वी विल चेक द डिविजिबिलिटी बाय 4. Let us erase whatever has been written till now. And now we will check the divisibility by 4. Just recall what was the divisibility test of 4. Just come up with the answer. Yes, in this case we looked upon the last two digits of a given number. These last two digits. If these two digits, the number formed by these two last digits, if it is divisible by 4, then this complete number will be divisible by 4. किसी दिए हुए नंबर की लास्ट टू डिजिट से जो नंबर बनेगा अगर वो नंबर 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल है और अगर वो नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है, लास्ट टू डिजिट से बनने वाला नंबर वो 4 से डिविजिबल नहीं है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा. तो यहाँ शुरू करते हैं. फर्स्ट नंबर है, वी कैन राइट हियर नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट टू डिजिट्स. In each case we will be writing that number. Okay, so the first number is 128 and the last two digits it is 2 and 8. 28 is the number formed.
Now just check whether this 28 is divisible by 4 or not. Yes, 28 comes in the table of 4. 4 sevens are 28. So this 28 is divisible by 4, and therefore this number 128 is also divisible by 4. So we can write a yes for 4. Okay, then the next number is 990, and the last two digits, they are 9 and 0, and the number formed is 90. Now this 90, is this divisible by 4? Let us try to divide it by 4, then we will come to know. Since it is a big number and we don't see this number in the table of 4, that's why we are checking it by dividing by 4. 90 बड़ा नंबर है, 4 की टेबल में हमें नहीं दिखता है, बड़ा नंबर है, इसलिए पहले हम इसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं डिवीजन पूरा है या नहीं. 4 2s are 8, 1 and 0, अगेन 4 2s are 8 और 2 रिमाइंडर हो गया. तो रिमाइंडर 0 नहीं है, इसलिए ये डिवीजन कंप्लीट नहीं है और 90 डिविजिबल नहीं है 4 से. इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4. इट वॉज एंड इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4. और क्योंकि 90 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 990 भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा. Got it? Then we have the next number, and it is 1586. We have to check its divisibility by 4. For this we will again look at the last two digits. It is 8 and 6, and the number formed is 86. Let us check its divisibility by 4. Again it is a big number, so we can divide it by 4. 4 2s are 8, 0, 6, 4 1s are 4, 2 remainder. Again the remainder is not 0, so the division is not complete, and 86 is not divisible by 4, and therefore 1586, it is also not divisible by 4. So we can write no here. Okay, clear to you all? Then again we will move on to the next number, and what is it? 275. 275. The last two digits make the number 75 in this case. Now is this 75 divisible by 4? Just tell me the answer. You can see this 5 is an odd number. 75 is an odd number, and therefore we know that in the table of 4 odd number does not come, and so this will not be divisible by 4, and so we can say here no. You can check it by dividing 75 by 4 if you want. It will be 4 1s are 4, 3, 35, 4 8s are 32, and 3 will be left. So here the remainder is not 0, and so 75 is not divisible by 4, and so 275 is also not divisible by 4. Again let us have a look at the table of 4. एक बार 4 की टेबल पे फिर से चलते हैं आपको रिकॉल करवाने के लिए. 4 की टेबल थी 4, 8, 12, 16, 20. Then 4 6 are 24, 4 7s are 28, 32, 36, 40. आप देखेंगे 48260, 48260 सभी इवन नंबर्स हैं, ऑड नंबर कोई भी नहीं है, इसलिए ऑड नंबर देखते ही हम लिख सकते हैं कि ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा, और हम ऑड नंबर के सामने नो लिख सकते हैं देखते ही. हमें यहाँ पे लास्ट टू डिजिट्स को डिवाइड करके भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है. तो ये याद रखिएगा 4 की टेबल के लिए कि ऑड नंबर नहीं है, और ऑड नंबर के लिए हम आसानी से नो लिख सकते हैं. नेक्स्ट नंबर इज 6686. These are the last two digits and the number formed is 86. अब यहाँ ये मत सोचिएगा कि ये तो इवन नंबर है तो 4 से डिविजिबल होगा ही, वो तो 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है. इवन नंबर्स के केस में 4 से डिविजिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. इसको एक बार डिवाइड करके देखते हैं 4 से. 4 2s are 8, 0, 6, 4 1s are 4.
देख लीजिए इवन नंबर है पर डिवीजन कंप्लीट नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो एन इवन नंबर कैन बी और मे बी डिविजिबल बाय 4 or it may not be divisible by 4, whereas in case of an odd number it is sure that it will not be divisible by 4. So here this number is not divisible by 4 and therefore 6686 will also not be divisible by 4. So we can write here a no. We saw it in case of this number also, 8686. 86 is not divisible by 4. Then we have the next number 6,39,210. Now the number formed by the last two digits, it is 10, and 10 is a small number. We can tell just by looking at it whether it is divisible by 4 or not. Clearly 10 does not come in the table of 4. 10 4 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये 10 4 से डिविजिबल नहीं है और इसलिए ये नंबर 6,39,210 भी 4 से डिविजिबल नहीं है. इट इज़ नॉट, एंड सो वी कैन राइट नो फॉर इट. द नेक्स्ट नंबर इज 4,29,714. इसमें लास्ट टू डिजिट से बनने वाला नंबर है 14. और क्या 14 4 से डिविजिबल है? अगेन नो, बिकॉज 14 डज नॉट कम इन द टेबल ऑफ 4. We know that 4 3s are 12 and 4 4s are 16, but 14 is not there, and therefore since 14 is not divisible by 4, so this big number will also not be divisible by 4. So we can say no for it. Then we have this next number 2856. फिर से हम लास्ट टू डिजिट्स पे देखते हैं 5 and 6 and the number formed is 56. क्या 56 4 से डिविजिबल है? आप 4 10s 40 तक तो टेबल जानते हैं, उसके बाद की टेबल्स भी आप रिकॉल कर सकते हैं. 4 11s 44, 4 12s 48, then 4 13s 52, then 4 14s 56. ठीक है, आप इस तरह से भी टेबल्स रिकॉल कर सकते हैं, और नहीं तो आप 56 में 4 को डिवाइड करके देख सकते हैं. 4 1s 4, 1 6, 4 4s 16. 0 आ रहा है रिमाइंडर. 56 4 से डिविजिबल है, टेबल से भी हमने देख लिया और डिवाइड करके भी देख लिया. तो 56 जो है डिविजिबल है 4 से, और इसलिए ये नंबर 2856 ये भी 4 से डिविजिबल होगा. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यस. ओके, let us erase now so that we can take on the other numbers also. The next number is 3060. Again look at the last two digits. It is the number forming is 60. Is 60 divisible by 4? क्या 64 से divisible है? अगर आप टेबल्स पे जाएं तो आपको पता होना चाहिए 15 4s 60 या 4 15s 60. तो ये 60 जो है 4 से डिविजिबल है. अगर आपको टेबल्स याद नहीं है तो पहले तो उनको याद कीजिए, और नहीं तो आप यहाँ पे 60 को डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं 4 से कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं. चलिए कर लेते हैं आपकी सुविधा के लिए, इन केस यू डोंट नो द टेबल. 4 1s 4, 2 0, 4 5s 20. तो आप देखिए रिमाइंडर 0 आ रहा है, डिवीजन एग्जैक्ट है, कंप्लीट है, और इसलिए 64 से डिविजिबल है, और इसलिए 3060 भी 4 से डिविजिबल है. तो हम यहाँ लिखेंगे यस. इसके बाद अगला नंबर, लास्ट नंबर, वो ले लेते हैं 406,839. 4,06,839. अगेन हम लास्ट टू डिजिट्स पे फोकस करते हैं. नंबर बन रहा है 39. क्या ये 4 से डिविजिबल है? आप देखेंगे ये ऑड नंबर है, और ऑड नंबर तो 4 की टेबल में आते ही नहीं है, तो इसलिए ये 4 से डिविजिबल नहीं है. हम देखते ही बता सकते हैं कि ये डिविजिबल नहीं है, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है. तो हम सीधे यहाँ पे लिखते हैं नो, क्योंकि 39 डिविजिबल नहीं है
तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये था आपका डिविजिबिलिटी बाय 4। नेक्स्ट वी विल गो ऑन टू द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5। Divisibility by 5. What was the divisibility test of 5? It was very easy. Just recall it. Yes, if the last digit of any number is either 0 or 5, then that number will be divisible by 5, otherwise not. अगर किसी दिए हुए नंबर का लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं। आप 5 की टेबल चेक कर सकते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30 सब में पीछे या तो 0 है या 5 है, तो वही इसकी पहचान है। देखते हैं पहला नंबर, लास्ट डिजिट है आपका 8 और ये 0 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है। नो फॉर इट। यहाँ तो कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है, देखते ही हम बता पा रहे हैं कि 5 से डिविजिबल है या नहीं। एक बार यहाँ लिख लेते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5। द लास्ट डिजिट इट इज 0 और 5। ओके, दिस इज द test of 5, and so here we have the last digit as 0, and so yes, it is divisible by 5. We write yes. यहाँ last digit 6 है, again 0 या 5 नहीं है, तो ये 5 से divisible नहीं है। No, यहाँ पे 5 है 275 में, last digit 5 है और इसलिए yes for it, ये 5 से divisible है। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। यहाँ पे लास्ट डिजिट है 6 और फिर से ये 5 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये ना तो 0 है ना 5। यहाँ लास्ट डिजिट आपकी 0 है और ये ज़रूर 5 से डिविजिबल है। येस, हियर द लास्ट डिजिट इज़ 4, अगेन इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5, सो वी राइट नो। 6 अगेन नो फॉर इट, नॉट डिविजिबल बाय 5। हियर द लास्ट डिजिट इज़ 0, येस इट इज़ डिविजिबल बाय 5। Here the last digit is 9, again 0 नहीं है, 5 नहीं है, तो ये नंबर भी 5 से डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे no। कितना इजी रहा ना? Playing with numbers, this is what is called playing with numbers, isn't it? Then we have the divisibility test of 6. Just recall what was it? याद कीजिए, divisibility by 6। कोई भी नंबर 6 से तभी डिविजिबल होगा जब वो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी। एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 6 ओनली इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 ऑल्सो एंड बाय 3 ऑल्सो। सो वी कैन राइट येस और नो जस्ट बाय लुकिंग एट दीज टू numbers 2 and 3. We can see whether this given number is divisible by 2 and 3 both. If yes, then we can write yes for 6 also. 128 लेते हैं। आप देखेंगे ये 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए क्या ये 6 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 3 ने मना कर दिया है तो 6 भी मना कर रहा है। दोनों से डिविजिबल होना ज़रूरी है। 990 पे जाते हैं। ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी, आप देख सकते हैं, तो इसलिए यस ये भी 6 से डिविजिबल होगा। यहाँ हम लिख सकते हैं इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3 both, then the number will be divisible by 6. So here we have yes for 2 and no for 3. 1586 2 से तो डिविजिबल है पर 3 से नहीं है, इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। नो। 275 दोनों से ही डिविजिबल नहीं है, 2 से भी नहीं है और 3 से भी नहीं है, और इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। नो लिख दिया हमने। 6686 ये 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है, और इसलिए ये 6 से भी नहीं होगा। ये नंबर 6,39,210 ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, और इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल होगा। यस,
देन दिस नंबर 4,29,714, ये भी दोनों से डिविजिबल है 2 और 3 से, और इसलिए 6 से भी डिविजिबल होगा, येस फॉर इट। दिस नंबर अगेन 2,856, ये भी 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है और इसलिए 6 से भी डिविजिबल होगा, येस। 3,060 भी 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल होगा, येस। ये नंबर 4,06,839, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से तो है, और इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। Clear to you? Next we move on to the divisibility test of 8. Just recall it till I erase this part. What was it? In case of 8, we looked at the last 3 digits and the number formed by these last 3 digits. If it is divisible by 8, then the full number will be divisible by 8. लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बन रहा है, अगर वो 8 से डिविजिबल है तो दिया हुआ पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। सो व्हाट वी विल लुक एट, नंबर फॉर्म्ड, लेट मी इरेज दिस, नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 digits. Okay, so the first number is 128 और ये खुद ही 3 डिजिट नंबर है तो तीनों ही लेने पड़ेंगे। 128 की डिविजिबिलिटी 8 से कैसे चेक करेंगे, बड़ा नंबर है, 8 से डिवाइड करके देखते हैं। 8 1s are 8, it's 48 and 8 6s are 48, yes, remainder is 0 and so 128 is divisible by 8, yes for it. Okay, then we move on to the next number which is 990. Again it is a 3 digit number, तो 8 से डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। 8 1s are 8, 1 and 9, then we have 8 2s are 16 and 8 3s are 24, so 8 2s are 16, 30, then we can write 8 3s are 24, 6 remainders, the remainder is not 0, so this 990 is not divisible by 8 and so we write a no for it. Then we take on this number 1586. यहाँ पर हमें लास्ट 3 डिजिट्स अलग कर सकते हैं और वो नंबर बन रहा है 586। इसको भी एक बार डिवाइड करके देखना पड़ेगा 8 से कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। सो वी गेट 8 7s are 56, 26, 8 3s are 24, 2 is the remainder. So again 586 is not divisible by 8, it is not, and so this full number 1586, it will also not be divisible by 8, so we can write a no here for it. Then the next number is 275. 275, it is itself a 3 digit number. Will this be divisible by 8? No, because it is an odd number and we just discussed in our previous class that an odd number is not divisible by 8. Odd number 8 की टेबल में आता ही नहीं है। एक बार फिर से 8 की टेबल देख लीजिए आप। 8 1s are 8, 8 2s are 16, 24, then 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 86420, 86420, कोई भी ऑड नंबर नहीं है 8 की टेबल में, इसलिए ऑड नंबर को तो हम देखते ही बता सकते हैं कि ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। डिवाइड करके भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे 275 के आगे लिखेंगे नो, हमने डिवाइड भी नहीं किया है।
इसके बाद अगला नंबर है 6686। इसकी लास्ट 3 डिजिट्स नंबर बना रही हैं 686। इसको 8 से डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। इसके लिए 8 8 ज़ा 64, 4 बचेंगे 46, नो 8 5 ज़ा 40, 6 इज़ द रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है और इसलिए ये 686 8 से डिविजिबल नहीं है, और ये 8 से डिविजिबल नहीं है तो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर? देन वी टेक अप द नेक्स्ट नंबर एंड दैट इज a big number 639210। अगेन लास्ट 3 डिजिट से नंबर बन रहा है 210। क्या ये 8 से डिविजिबल है? डिवाइड करके देख लीजिए। इवन नंबर के केस में वो 8 से डिविजिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो 8 2 ज़ा 16, यू विल गेट 50, 8 6 ज़ा 48। अगेन रिमाइंडर इज नॉट 0, इट इज़ 2। तो यहाँ पर 210 8 से डिविजिबल नहीं है और इसलिए ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। हम लिख रहे हैं यहाँ पे नो। उसके बाद अगले नंबर पे चलते हैं। ये भी एक बड़ा नंबर है 429714। इसकी लास्ट 3 डिजिट्स हैं 7 1 एंड 4। द नंबर इज 714। क्या ये 8 से डिविजिबल है? इसके लिए डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 8 से करते हैं 8 8 ज़ा 64, 74, 8 9 ज़ा 72, 2 इज़ द रिमाइंडर। ये भी 8 से डिविजिबल नहीं है और इसलिए ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। हम लिखेंगे नो। अगले नंबर पर चलते हैं, इसको हटाकर, और वो क्या है 2856। इसकी लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो है 856 और इसको हम चेक करेंगे इसकी डिविजिबिलिटी 8 से डिवाइड करके। 8 1 ज़ा 8, 0 5, 5 तो छोटा नंबर है 0 से चलेगा। 8 0 ज़ा 0, 5। अब 6 उतारेंगे एंड 8 7 ज़ा 56, रिमाइंडर 0। यहाँ पर 856 it is divisible by 8 and so this full number 2856 it is also divisible by 8 and we write yes here. Okay, then next we take up the next number which is, we will have to erase it once again, 3060. The last 3 digits they form the number 060 and it is actually 60. Is 60 divisible by 8? Clearly not. We know that 8 7 is 56 and 8 8 is 64. तो 60 तो 8 की टेबल में आता ही नहीं है और इसलिए ये 8 से डिविजिबल नहीं है और इसलिए ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं है. So we can write no straight away. Then we have the next number 406839 and the last 3 digits form the number 839. Again it is an odd number, so we can straight away write a no for it. Odd number तो 8 से divisible होता ही नहीं है, so हमने सीधे ही no लिख दिया है. डिवाइड करके चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो ये easy हो गया. यहाँ पे no लिख दिया हमने. इससे हमने 8 से डिविजिबिलिटी चेक कर ली है सभी नंबर्स की. और अब हमारा अगला नंबर है 9. 9 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे और 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था? सेम था 3 जैसा ही. इसमें भी हम सम ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करेंगे. अगर डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा, और अगर ये सम 9 से डिविजिबल नहीं है तो नंबर भी डिविजिबल नहीं है. If the sum of the digits is divisible by 9, then the complete number will also be divisible by 9. And if this sum of digits
it will not be divisible by 9, then the number will again not be divisible by 9. So we have this number 128. इसके डिजिट्स को ऐड करते हैं, 1 + 2 + 8, इट इज़ 11. क्या 11 9 से डिविजिबल है? 9 की टेबल में आता है? नहीं आता है, और इसलिए क्योंकि 11 9 से डिविजिबल नहीं है तो 128 भी 9 से डिविजिबल नहीं है, और हम यहाँ लिखेंगे नो. इसके बाद अगला नंबर आता है 990. ये तो वैसे आप देख के ही बता सकते हैं 9 से डिविजिबल है. 9 11 = 99 होता है. एक बार फिर भी डिजिट्स को ऐड करके देख लेते हैं. 18, और 18 तो 9 से डिविजिबल है, 9 की टेबल में आता है, और इसलिए क्योंकि ये 9 से डिविजिबल है तो 990 भी 9 से डिविजिबल है, और हम यहाँ लिखेंगे yes. Then the next number is 1586. इसमें भी डिजिट्स को ऐड करना पड़ेगा. 1 + 5 + 8 + 6. What is it? 6 and 8, 14 and 6, 20. 29 से डिविजिबल नहीं है, 9 की टेबल में नहीं आता है, और इसलिए 1586 भी 9 से डिविजिबल नहीं है, और हम यहाँ लिखेंगे नो. नेक्स्ट नंबर है 275. लेट मी इरेज दिस. 275. इसके डिजिट्स को ऐड करते हैं. 2 + 7 + 5, 14. Is 14 divisible by 9? Clearly not. We don't have this 14 in the table of 9, and so since it is not divisible by 9, so 275 is again not divisible by 9. So we write a no here. Then the next number is 6686. Again add the digits. It is 26. Is 26 divisible by 9? No, it does not come in the table of 9. 9 की टेबल में 26 नहीं आता है, और क्योंकि 26 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये दिया हुआ नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं है, और हम यहाँ लिखेंगे नो. इसके बाद अगला नंबर ले लेते हैं. उसके लिए स्पेस बना लें थोड़ी सी. अगला नंबर है 6. मैं डायरेक्टली ही सम लिख रही हूँ. 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0. अगला नंबर ये, इसका सम निकाल रहे हैं हम यहाँ पे. ये हो गया 9 and 9 18, 20, 21. क्या 21 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं. 21 9 की टेबल में नहीं आता है, एंड सिंस दिस 21 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, सो दिस कंप्लीट नंबर 6,39,210, it is also not divisible by 9. So we write a no here. Then the next number, again we write the sum of its digits. It is 4 + 2 + 9 + 7 + 1 + 4. Just add on. 4 and 2 6 and 9 15, 22, 23 and 4, it's 27. Now is this 27 divisible by 9? Yes, it comes in the table of 9. 9 3s are 27, and therefore since this is divisible by 9, so this complete number is also divisible by 9, and we write yes here. Then we have the next number. Let us write down the sum of its digits. 2 + 8 + 5 + 6. It is its sum. What is it? 10, 15 and 6, 21. Now again 21 is not divisible by 9, and so this full number is also not divisible by 9. We write no here. Let us make some space here. The next number is 3060, and its sum is 3 + 0 + 6 + 0. 6 and 3 9, and 9 is divisible by itself, so this number is also divisible by yes, 9. We write yes. Now we have the last number
we write the sum of its digits. We have 4 plus 0 plus 6, then 8, 3 and 9. Add on the digits 10, 18, 21 and 30. Is 30 divisible by 9? No, 30 does not come in its table, and so this number is also not divisible by 9. In this way we have discussed the divisibility of each of these numbers by 9. Next, what number we have to take? It is divisibility by 10, and it's an easy one. If there is a 0 at the ones place, last digit, if it is 0, then the number is divisible by 10, otherwise not. लास्ट डिजिट देखते हैं, वो 0 है तो 10 से डिविजिबल है, नहीं तो नहीं. यहाँ पे ये 8 है तो ये 10 से डिविजिबल नहीं है. यहाँ 0 है तो ये यस 10 से डिविजिबल है. यहाँ पर लास्ट डिजिट 6 है तो ये 10 से डिविजिबल नहीं है, 0 होना चाहिए था. ये लास्ट डिजिट 5 है तो ये भी 10 से डिविजिबल नहीं है. यहाँ लास्ट डिजिट 6 है, ये भी 10 से डिविजिबल नहीं है. यहाँ लास्ट डिजिट 0 है तो ये ज़रूर है 10 से डिविजिबल. येस, इट इज़ डिविजिबल बाय 10. इन सब में ये 4 और 6 लास्ट डिजिट हैं, ये दोनों ही 10 से डिविजिबल नहीं है. हम नो लिख रहे हैं दोनों के लिए. ये वाला नंबर, इसमें लास्ट डिजिट 0 है एंड सो इट इज़ डिविजिबल बाय 10. वी राइट येस. And here also the last digit is not 0 and so it is not divisible by 10. So that was an easy one. The next number that we have to analyze, divisibility by 11. What was the divisibility test of 11? In this case, we had to find the sum of digits at odd places taking from the right, sum of digits at even places, then we will have to find their difference, and if that difference is divisible by 11 then the original number will also be divisible by 11. तो यहाँ हम निकालेंगे sum of digits at odd places पहले तो. फिर हम निकालेंगे सम एट इवन प्लेसेस. सम ऑफ डिजिट्स. ओके, इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि हम किसका सम निकाल रहे हैं. सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस निकालेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, और फिर अगर ये डिफरेंस 11 से डिविजिबल होगा तो ओरिजिनल नंबर जो भी होगा वो भी 11 से डिविजिबल होगा. तो यहाँ हमारा पहला नंबर हम ले रहे हैं 128. तो इसमें ऑड प्लेसेस पे कौन से नंबर हैं? ये फर्स्ट नंबर और ये थर्ड नंबर. तो ये हो गया हमारा 8 + 1 9. और इवन प्लेस कौन सी हो गई? ये बीच वाली सेकंड. तो इस पर तो 2 ही है तो 2 ही सम लेंगे हम यहाँ पे. इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं. 9 - 2 इट इज़ 7. क्या ये 7 11 से डिविजिबल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है. 11 से छोटा है ये, तो यहाँ हम लिखेंगे नो. ये नंबर 128 भी 11 से डिविजिबल नहीं है. फिर अगला नंबर लेते हैं. इसके लिए ये मिटाना पड़ेगा. अगला नंबर है हमारा 990. यहाँ पे ऑड प्लेसेस पे कौन सी डिजिट है? फर्स्ट और थर्ड. तो हमारा ये सम आ जाएगा 0 + 9 9 आ जाएगा. और इवन प्लेस पे कौन सा नंबर है? सेकंड नंबर पे, सेकंड प्लेस पे 9. एक ही डिजिट है तो सम भी 9 ही होगा. और इन दोनों का डिफरेंस 9 - 9 इट इज़ 0. और हमने बात की थी कि अगर ये डिफरेंस 0 हो या 11 का मल्टीपल हो तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा. तो 0 भी 11 से डिविजिबल होता ही है. ये 0 है इसलिए
ये नंबर 990 भी 11 से डिविजिबल है, और हम यहाँ लिखेंगे yes. Then we look on at the next number. What is it? It's 1586. यहाँ पर चेक करते हैं ऑड प्लेसेस पे कौन सी डिजिट है, फर्स्ट और थर्ड. तो ये हो गया 6 + 5 11. और इवन प्लेसेस पे सेकंड और फोर्थ, तो 8 + 1 9 हो गया. दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 11 - 9 इट इज़ 2. और 2 तो 11 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये नंबर भी 1586 ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है. हम यहाँ लिखेंगे नो. इसके बाद अगला नंबर है 275. इसको आप चेक करिए जब तक मैं मिटा रही हूँ इसको. इसमें ऑड प्लेस पे कौन से डिजिट्स हैं, फर्स्ट एंड थर्ड. तो ये आपका हो गया 5 + 2 7. और इवन प्लेस पे कौन सा डिजिट है, सेकेंड नंबर पे 7 इटसेल्फ. एक ही डिजिट है तो सम भी 7 ही होगा. इनका डिफरेंस 7 - 7 इट इज़ 0. और क्योंकि ये 0 है तो ये दिया हुआ नंबर 275 11 से डिविजिबल है. और आप चेक कर सकते हैं 11 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं. तो यहाँ हम लिखेंगे yes. Then we move on to the next number. Let me erase this first. नेक्स्ट नंबर हमारा है 6686. अगेन डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, फर्स्ट और थर्ड. 6 + 6 इनका सम आ गया आपका 12. फिर सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, कौन सी हुई इवन प्लेसेस, सेकेंड एंड फोर्थ. 8 + 6 इट इज़ 14. इनका सम डिफरेंस, इनका डिफरेंस क्या आया, 14 - 12 इट्स 2 ओनली. और 2 11 से डिविजिबल नहीं है, और इसलिए ये नंबर 6686 भी 11 से डिविजिबल नहीं है. हम लिखेंगे नो. इसके बाद अगले नंबर पर चलते हैं, और ये नंबर थोड़ा बड़ा है. अगला नंबर हमारा है 639 Again sum of digits at odd places. Which are the odd places? First, third and fifth. So it is 0, 2 and 3. The sum will be 5. Sum of digits at even places. What are those even places? Second, fourth और सिक्स्थ प्लेस. तो ये हो गई 1, 9 और 6. 9 and 6 15 and 1 it's 16. What is 16 - 5? It is 11. और 11 तो 11 से डिविजिबल है ही. 11 × 11 11 की टेबल में आता है, और इसलिए क्योंकि ये 11 से डिविजिबल है ये डिफरेंस, इसलिए ये पूरा बड़ा नंबर भी 11 से डिविजिबल है. So yes for it. Then what is the next number? Let me erase all this so that we can write the next number, and it is again a big one. 429,714. Again we will find the sum of digits at odd places. This is the first place, third place and fifth place. So we write 4 + 7 + 2. Every time we are taking it from the right side. So we have 4 and 7 11 and 2 it's 13 is the sum. Then sum of digits at even places, second digit, fourth digit and sixth digit. It is 1 + 9 + 4. It is 14. And what is their difference? 14 - 13 it is 1 only.
and 1 is not divisible by 11. So this number is also not divisible by 11. We write it no. इसके बाद अगला नंबर लेते हैं. The next number is 2856, 2856. Again sum of digits at odd places. Odd places हैं first और third. तो 6 plus 8, 14. और sum of digits at even places, which are those? 5 is at second place and fourth place. So it is actually 5 plus 2, 7. What is their difference? 14 minus 7. It is equal to 7. Is 7 divisible by 11? Clearly not. 7 is not there in the table of 11, and so since it is not divisible by 11, so this number 2856 is also not divisible by 11, and we write a no here. Then we have the next number, which is 3060. Let us make space for it. 3060. Sum of digits at odd places. First digit, third digit. 0 plus 0, it is 0. Then sum of digits at even places. Second place, fourth place. So we have it equal to 6 plus 3 equal to 9. And now what is their difference? It is 9 minus 0 equal to 9. And 9 is again not divisible by 11. And so this number 3060 is also not divisible by 11. So we have written no for it. Now the last number we have is again a big number. Let us write it. It is 4,06,839. Again we will write the sum of digits at odd places, and these are the first digit, third digit and fifth digit. So we write it here 9 plus 8 plus 0, taking from the right. Remember this every time. 9 and 8, it's 17. Then sum of digits at even places. This is the second digit, fourth digit, sixth digit. So we write their sum 3, 6 and 4. It's 13. Just subtract the two numbers. We have 17 minus 13 and it is only 4. Is 4 divisible by 11? Clearly not. It is not divisible by 11, and so this big number is also not divisible by 11. So we write here a no. So this was your question number 1 of exercise 3.3, and it included all the divisibility tests you can see here. And now we will be doing the next question in our next video. Till then, practice these numbers, the tests, and you can take your own numbers for their practice. Okay, goodbye.